this question is very important, in terms of, the nature of the masala. Because riba, sood is something denounced in Islamic Sharia, and it is not serious. It is not, normal thing. It's very grave and, serious thing. So here question, and it has come in exam. Yeah, I think in 2024, they said describe teachings about debt and interest. Debt is just loan, it is just loan, and loan is encouraged. You can take loan, no problem. Yeah, it is not prohibited. But interest, sometimes we call it usury or riba. Yeah, all these are the names. Sood, these are these are prohibited. So here they clearly stated according to one school of Islamic jurisprudence. So here you don't need to mention two mazhab. You got it? Only one mazhab is enough, sufficing. So what are the two things are mentioned here? The debt, this one, and interest too. So sometimes debt involves interest. It entails interest. That's why, and then it becomes, one form of interest. ठीक है, ये जो लोन होता है ना, ये भी कभी कभार इसके अंदर सूद आ जाता है, सूद का एक एलिमेंट आ जाता है, तो फिर ये भी सूद शुमार होता है. अदरवाइज नियर डेट इट इज जस्ट अ परमिसिबल थिंग if it remains within its limitations. Yeah, मतलब आपने किसी को 1000 जो है वो आपने लेंड किया, आपने उसको दिया, किसी ने आपसे 1000 बारो किया, आपने दे दिया, फिर आप जब उससे वापस लेते हैं तो यू टेक बैक 1200. So this 200 extra amount, why are you taking this? So this 200 extra amount will be considered interest. If you are not taking the excessive amount, yeah, mean 1000, you are receiving the 1000, then it is okay. This is just a debt, this is just a loan, repayment, and it is okay. And here we only need to explain this in the light of one school of thought. So yeah, so in Islamic jurisprudence, dealing with debt and interest, it is strictly regulated. Yeah, it is strictly regulated to prevent injustice and exploitation. Why the interest is prohibited? Only because of exploitation. Because you are harming the other person. You are harming. You gave him 1000 and you are taking back, the 2000. So this is exploitation. Or in the case of barter trade, the barter trade, when you exchange the goods for goods, there is no money involved. You are just, giving wheat, and in exchange you are receiving, the rice. Got it? So interest, it is strictly regulated only to prevent exploitation. Got it? So you cannot, take the excess amount in interest. So there is difference between the profit and the interest. So Allah said, the polytheists at their time, they said the profit and interest, they both are same. No difference between them. In profit you also get the excess amount ना. एक परफ्यूम उसने परचेज किया 1000 का, वो अपनी शॉप पे लाके रखता है और उसको 2000 का उसको सेल करता है. ठीक है, तो ये 1000 उस पर वो प्रॉफिट ले रहा है. तो ये प्रॉफिट तो सब कहते हैं ठीक है, हालांकि उसने 1000 का लिया है, लेकिन आपको वो 1500 का या 2000 का सेल कर रहा है, तो ये प्रॉफिट है, ये जायज़ होता है. लेकिन अगर आप उसके साथ जो है ना, चलें लोन वाला केस ले लेते हैं कि आपने किसी को लोन दिया फॉर एग्जांपल 1 लाख का, और आप उसके एक्सचेंज में 2 लाख लेते हैं या 1.5 लाख लेते हैं, तो ये इंटरेस्ट है. दिस इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉफिट. ये प्रॉफिट नहीं है. गॉट इट? या क्योंकि इसमें आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं ना सूद के अंदर, ठीक है, उसकी एक्सचेंज में आप कोई फेवर नहीं करते. आपने उससे एक्स्ट्रा क्यों लिया? आपने कोई सर्विस उसको दी है. मर्चेंट के केस में तो ये है कि मर्चेंट ने वो चीज़ जो है वो फैक्ट्री से वो चीज़ परचेज़ की है, वो लेके आया है, उसको एक्सपेंस पड़ गए हैं, और वो उसने आपको एक ख़ास जगह में लाकर वो चीज़ प्रोवाइड की है. ठीक है, तो वो अपनी सर्विस का जो है वो आपसे ले रहा है ना. वरना आप हर आदमी जो है वो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ की तरफ तो नहीं भाग सकता कि फैक्ट्री से जाकर वो चीज़ खरीदे. ठीक है, आपको तो अपने घर के अंदर बैठे बैठे अपने मोहल्ले की दुकान से वो चीज़ मिल गई, तो वो अपनी सर्विस का एक्सेस अमाउंट लेता है. सूद रिबा के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ली जाती है वो किसी सर्विस के बदले में नहीं होती, वो जस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है. जैसे बैंक से लोग लोन लेते हैं और वो बैंक जो है वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उनको अमाउंट दे देता है और नेक्स्ट मंथ वो उसके ऊपर प्रॉफिट ले लेता है. ठीक है, ये प्रॉफिट उसने किस चीज़ का लिया है, तो ये किसी चीज़ का नहीं है, इसलिए इसको सूद कहा जाता है. और ये एक्सप्लॉयटेशन है. और इसकी डेफिनेशन क्या है?
definition is that according to Hanafi school, because they said according to one school, so they defines riba as an excess amount of wealth without a corresponding counter value, विदाउट अ काउंटर वैल्यू, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेना जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई काउंटर वैल्यू नहीं है, जिसके बदले में कोई कॉम्पेंसेशन है ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट करें 1000 के बदले में 15 जो है वो 100 वो एक्सचेंज हुए, तो 1000 तो 1000 के बदले में हो गए ना, तो 500 किसके बदले में है, ये चीज़ है, इसको हम कह रहे हैं कि इट इज़ विदाउट अ काउंटर वैल्यू, कि यहाँ इसके बदले में कुछ नहीं है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाता है। Got it? So again, riba is an excess of wealth without a corresponding counter value in a commercial exchange. Got it? So एक आपने अपने जो है वो नेबर से जो है वो 1 किलो वीट ली, ठीक है, 1 किलो वीट ग्रेन्स आपने उनसे ली, आपको ज़रूरत थी, लेकिन आपने क्या किया, जब उसको वापस करने लगे तो आपने 1.5 किलो वीट उसको वापस की, तो ये सूद है। Okay. Yeah, this सूद applies here. If you got some salt, you know, if you borrowed some salt, you know, specific amount, एक पैकेट आपने लिया और उसको जब आपने रिटर्न किया तो ज़्यादा दे दिया, तो ये सूद हो जाता है। Okay. क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसका कोई काउंटर वैल्यू नहीं होता। ओके, what is the illat, what is the legal basis, you know, of the सूद, सूद की जो इल्लत है, जो कॉज है जिसकी वजह से वो प्रोहिबिटेड होता है, वो क्यों है और वो कहाँ से हमने डिराइव किया है। सो देयर इज़ अ वेल नोन फेमस हदीस, यू नो, देयर वाज अ हदीस, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड, अल हिंततु बिल हिंता, अत-तमरु बित तमर, यू नो, वश-शईरु बिश-शईर, अल मिल्हु बिल मिल्हि, यदन बि यदिन व यदन बि यदिन वला तफादुल, काइंड ऑफ। उसमें ये था कि अगर एक ही टाइप की चीज़ अगर एक्सचेंज की जाए, बार्टर ट्रेड की बात करें, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था, करेंसी के ऊपर भी कारोबार होते थे, और उसके अलावा जो है लोग जो गुड्स होती थी, कमोडिटीज़ होती थी, वो उनको भी एक्सचेंज कर लिया करते थे। मतलब किसी ने गंदम लेनी है तो वो गंदम देकर उसके बदले में गंदम ले लेता था, ठीक है, मतलब मुल्क शाम की जो गंदम है वो ख़रीदना चाहता है, उसके पास इराक़ की गंदम है, बसरा की गंदम है, तो वो चाहता है कि बसरा की जो गंदम है उसको देकर मैं इराक़, वो दूसरी जो है शाम वाली गंदम वो ख़रीद लूँ। तो ये बार्टर ट्रेड होती थी, दे यूज़ टू डू दिस। या तो इसमें यह है कि अगर दोनों की टाइप एक है, ठीक है, दोनों चीज़ों की टाइप एक है और दोनों की जो है वो मेजरमेंट एक है, ठीक है, मतलब दोनों को किलो के साथ जो है मेजर किया जाता है, या दोनों को यार्ड के साथ जो है वो मेजर किया जाता है, या दोनों को वेट के साथ मेजर किया जाता है, ठीक है, 100, 100, 200, तो मेजरमेंट सेम हो और उस चीज़ की जो टाइप है, कैटेगरी है, वो सेम हो, तो फिर उसमें सूद अप्लाई होता है। फिर उसमें आप एक्सेस नहीं दे सकते, बिल्कुल इक्वल अमाउंट आपने एक्सचेंज करनी होती है, और आप उसमें उधार भी नहीं कर सकते, आपको ऑन द स्पॉट वो चीज़ें एक्सचेंज करनी होती है। तो सूद में दो चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी सूद कहाँ अप्लाई होता है, फर्स्ट थिंग इट अप्लाइज वेयर, इट अप्लाइज व्हेन द कैटेगरी, you know, category mean type of the item, you know, it is same. When type is same, mean wheat against wheat, the salt against salt, the date against date, ठीक है, राइस अगेंस्ट राइस। तो कैटेगरी जब एक हो दोनों चीज़ों की, और दूसरी चीज़ क्या है कि द मेजरमेंट इज सेम। Measurement mean the both items, you know, they are measured in yards, or they are measured in kilos, or they are measured, you know, by counting also. So अब वो गंदम हो, वीट हो या राइस हो, दोनों की टाइप एक, दोनों की मेजरमेंट एक ही है, और वो सा के साथ होती है, राइट। एक ही स्केल है जिसके ऊपर दोनों को मेजर करके दिया जाता है। तो जब ये दो चीज़ें कंबाइन पाई जाएं, जब मतलब जिन चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं बार्टर ट्रेड में, उनकी कैटेगरी सेम है और उनकी मेजरमेंट भी सेम है, मतलब उनको एक ही स्केल के साथ उनको मेजर किया जाता है, तो फिर अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है, नो एक्सेस इज अलाउड एंड नो डिले इज अलाउड। या दैट इज द रूल। फिर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या अनइक्वल जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, कि वीट जो एक वीट जो है वो 1 किलो हो और दूसरी जो वीट है वो 1.5 किलो हो, तो ये एक्सेस हो गई ना, तो ये जायज़ नहीं। इसी तरह इसके अंदर देयर इज़ नो डिले अलाउड, डिले भी अलाउड नहीं होती कि 1 किलो गंदम जो बसरा वाली है वो तो अभी आप रिसीव कर लें, और जो शाम वाली 1 किलो वीट है यू विल पे इट, यू नो, टुमारो और द नेक्स्ट वीक, तो ये डिले भी जायज़ नहीं होता। अगर आप डिले करते हैं तो वो सूद हो जाता है, अगर आप एक्सेस अमाउंट देते हैं तो वो भी सूद हो जाता है।
Got it? So that is the definition of this riba. रिबा, इसकी कॉज, इसकी बेसिस क्या है हमारे पास? इसकी बेसिस ये हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेंशन 6 commodities. The 6 commodities, they are gold, silver, wheat, barley, dates and salt. ये 6 आइटम्स हैं, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया और आपने कहा कि जब आप इन ऐसी चीज़ों, एक ही चीज़ों का ठीक है, उनको एक्सचेंज करो तो देयर इज़ नो एक्सेस अलाउड एंड देयर इज़ नो डिले अलाउड. तो इसमें आप ना उधार कर सकते हैं और ना ही आप एक्सेस अमाउंट दे सकते हैं. मतलब फ़र्क नहीं होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर, इक्वल क्वांटिटी आपने एक्सचेंज करनी है. तो ये आपने कहा कि अगर आप करोगे तो वो सूद होगा. गॉट इट? तो इससे हमें पता चला ना कि 2 चीज़ें वो सूद की बेसिस है. नंबर 1 कैटेगरी, कि दोनों आइटम की कैटेगरी टाइप एक होनी चाहिए, और सेकंड चीज़ कि दोनों की मेजरमेंट एक होनी चाहिए. ठीक है, फ़र्ज़ करें कि और इसकी मिसाल क्या होगी? वीट इन एक्सचेंज ऑफ वीट. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ लैप्सिस कर जाए, मतलब कैटेगरी सेम ना हो, जैसे वीट इन एक्सचेंज फॉर राइस, अब इनमें कैटेगरी सेम नहीं है. गॉट इट? बिकॉज वीट इज़ डिफरेंट थिंग ना, राइस इज़ डिफरेंट थिंग, बट इनकी मेजरमेंट सेम है, दोनों को एक ही स्केल में पैमाइश की जाती है. ठीक है. सो यहाँ जब एक चीज़ मिसिंग हो ना, तो फिर क्या होता है? एक्सेस अमाउंट जायज़ हो जाती है. ये जो एक्सेस अमाउंट है ये अलाउड. फिर आप ये हो सकता है कि आप 1 किलो 1 kg वीट के बदले में जो है वो 2 किलो राइस ले लो, एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इंटरेस्ट, सूद, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड. लेकिन डिले इसमें भी नहीं हो सकता. डिले फिर भी जो है स्टिल इट रिमेन्स अनअलाउड. अगर आपने 1 kg वीट के अगेंस्ट 2 किलो राइस आपने लिए, लेकिन आपने उसी स्पॉट एक्सचेंज नहीं किया. स्पॉट एक्सचेंज मतलब इमीडिएटली आपने एक्सचेंज नहीं किया, आपने उसको कुछ टाइम के बाद जो है वो सेकंड आइटम को आपने उसको डिलीवर किया, तो ये सूद हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड.